Hello everyone, I am Deepika and today we're going to study a poem called The Lake Isle of Innisfree, which has been written by William Butler Yeats. Basically, isle mean an island, and here this Innisfree is actually situated in Ireland. So here our poet is telling us, William Butler Yeats, that he wants to go to this island, he wants to spend the rest of his life there, and he's telling us how he longs to go to this place because he wants peace and he wants to be near nature. So which is, and also we've been told that he has got many childhood memories associated to this place. So we have many reasons that been told by him in the poetry as to why he wants to go there, क्यों वहां जाना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, बिकॉज ही वॉन्ट्स पीस, ट्रैंक्विलिटी जिसको बोलते हैं, और नियर नेचर, क्योंकि वहां पे बहुत कम लोग होते हैं. इट्स नॉट लाइक आवर सिटीज. एंड इन दिस पोएट्री, दो ही इज नॉट मेंशन्ड अबाउट सिटीज, बट हाउ ही लॉन्ग्स टू गो टू अ प्लेस वेयर देयर आर नॉट मेनी पीपल, also tells us that he wants to go away from hustle bustle of a city place or a town जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कार्स हैं, बहुत पोल्यूशन है. बिकॉज हियर, यहाँ पे वो बोल रहे हैं हमें कि वो नेचर के पास जाना चाहते हैं. ही वॉन्ट्स टू लिव नियर नेचर, जहाँ पे वो उन्हें क्लियर क्लाउड्स दिखे, उसमें स्टार्स दिखे, एंड वहां पे उन्हें ग्रीनरी दिखे चारों तरफ. So that's about that is the poetry about. So let's get started. We will discuss the poetry line by line, and I will discuss the literary devices after we've discussed the poetry, and also along with the poetry I'm going to discuss the difficult words in the poetry. I will arise and go now and go to Innisfree, a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. Now, so what is the poet telling us? हमें first line में ही बता दिया गया है कि I will arise, मतलब I am going to get up and go now, और मैं शुरुआत करूंगा जाने की, and go to Innisfree. So he's telling us in the very first line कि वो उठेंगे and he will go to Innisfree. He is preparing, he wants to go there. And a small cabin built there, so he has a plan. वहां पे एक small cabin, मतलब एक छोटा सा घर बनाएंगे अपने लिए, of clay and wattles made. Clay जिससे आप खेलते हैं बचपन में, and wattles यहाँ पे on your right hand side down you can see this picture. एक material होता है जिससे आप fence या फिर कुछ भी चीज build करते हैं, wall. So this is your wattle made. 9 beans row will I have there, मतलब he's going to grow 9 bean rows. एक तो यहाँ पे दो चीजें हम देख सकते हैं, how he wants to engage himself with an event of nature, मतलब किस तरीके से वो खुद ब खुद नेचर के पास जाना चाहते हैं, और अपने हाथ, he wants to try his hands at growing beans. Also this refers to food, that he is going to grow his own food there. Will I have there a hive for honeybee. हाइव क्या होता है? जहाँ पे आपकी हनीज रहती हैं, जिसको मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि मैं 9 bean rows वहां पे होंगी, और वहां पे एक हाइव होगा जहाँ पे हनी बी रहेंगी. तो दोनों की दोनों चीजें एक तरीके से फूड को रेफर कर रही है. एंड हाउ ही इज ऑल्सो टेलिंग अस कि इतना सब कुछ वहां पे जहाँ पे होगा, हमें पता चल रहा है कि ही इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू नेचर देयर. एंड लिव अलोन इन बी लाउड ग्लेड. ग्लेड का मतलब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एन ओपन स्पेस इन अ वुड और फॉरेस्ट. जब एक वुड और फॉरेस्ट में ओपन स्पेस है, इसका मतलब वही क्लियर है कि वहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं. एंड ही सेइंग लिव अलोन, तो वहां पे वो अकेले रहना चाहते हैं, प्रैक्टिकली एज इन जहां बहुत कम लोग हो, इन द बी लाउड ग्लेड, और वहां पे बहुत सारी बीज होंगी. बेसिकली ही इज गोइंग टू बी नियर नेचर देयर. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnets wings. Wheels here refers to a piece of cloth which we use to cover our face, जिसको हम हिंदी में पर्दा भी बोलते हैं. Glimmer means something which is shiny, beautiful, glittery. Linnet wing, linnet is a kind of a bird. अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. So the poet is saying that he is going to find peace there. There is an Innisfree, for peace comes dropping slow. जो peace है वो धीरे धीरे से आता है, it comes slowly. और इस लाइन का मतलब ये भी हो सकता है किस तरीके की सिटी में जो लाइफ होती है, इतनी फास्ट लाइफ होती है, that people have no time to actually live life. They are just rushing from one task to another.
जो एक जगह है विच ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर इज इनिसफ्री, और वहां पे बताया गया है कि कम लोग हैं, शांति है, पीसफुल है सब कुछ, एंड इट्स नियर नेचर, नेचर के पास है, यू कैन फील नेचर देयर. सो वहां पे पीस को फाइंड करना इज इजियर देन टू फाइंड पीस इन सिटी. सो ड्रॉपिंग स्लो का मतलब ये भी हो सकता है दैट इट्स हार्ड टू find a peace in any place which is crowded with many people and which has got, you know, all the people living life, not literally living life, they're just, you know, making money, अपने टास्क कर रहे हैं, लेकिन उनको जीने का टाइम नहीं है, पीस का टाइम नहीं है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. शुरुआत कहाँ से होती है पीस की? वेल्स ऑफ द मॉर्निंग. जब शुरुआत मॉर्निंग एकदम अर्ली मॉर्निंग शुरुआत होती है जहां पे क्रिकेट सिंग करते हैं. ये जो आपके टॉप एकदम बॉटम में जो आपकी ये पिक्चर है, ये क्रिकेट की पिक्चर है. इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट. सो जो वो एक आवाज निकालते हैं, इट्स म्यूजिकल इन इट्स जॉनर, तो मतलब थोड़ी म्यूजिकल होती है उनकी आवाज. तो वो जब सुनेंगे पोएट, ही इज गोइंग टू फील पीस, ही इज गोइंग टू फील हैप्पी विद इन. Their midnights all a glimmer. There मतलब Innisfree में midnight क्या है? It's all a glimmer. क्योंकि cities में आपको hardly stars दिखते हैं. When you're going to a place जहाँ पे इतनी pollution नहीं है, वहाँ पे क्या होगा? आप sky को देखेंगे and you'll see it's brightened with stars. क्योंकि आप stars बहुत beautifully देख सकते हैं किस तरीके से वो वहाँ पे shine कर रहे हैं. So midnight क्या होगा? It's going to be full of stars. आप clearly देख सकेंगे. When you look up in the sky, you'll be able to see stars जो एकदम ब्राइट होंगे, ब्यूटीफुल होंगे और शाइनी होंगे. एंड नून अ पर्पल ग्लो. और नून जो है वहां पे सन आपको एक पर्पल तरीके का ग्लो देगा, ब्यूटीफुल ग्लो देगा. एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग्स. और इवनिंग में क्या करेंगे ये जो बर्ड्स हैं लिनेट्स, दे गोइंग टू फ्लाई हाई इन द स्काई. सो दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू फील नेचर देयर इन Innisfree. दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग अस हियर. I will rise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sound by the shore. While I stand on the roadway on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's court. लैपिंग का मतलब होता है स्ट्राइकिंग. आपने कभी लहरें उठती हुई देखी हैं किस तरीके से वो अपने शोर पे आती हैं, किनारे पे आती हैं, वहां पे स्ट्राइक करती हैं और फिर वापस चली जाती हैं. सो अब शुरुआत करते हैं. व्हाट ही इज सेइंग हियर, आई विल राइज एंड गो नाउ. ये शुरुआत में भी जो हमने लाइन पढ़ी थी, ये लाइन सेम वहां पर थी. सो इट मीन्स देयर इज रिपीटेशन एज अ फिगर ऑफ स्पीच विच हैज बीन यूज्ड इन द पोम. ये याद रखिएगा. For always night and day. So he's saying कि अब मैं जाता हूं, मैं उठता हूं, and I'll go to Innisfree now. And he's also saying for always night and day. What is he saying by this? That he always misses Innisfree. चाहे दिन हो चाहे रात हो, he's always thinking about Innisfree. उनके पूरे thoughts में Innisfree is there all the time. I hear lake water lapping with low sounds by the shore. And वो बोल रहे हैं कि मैं हमेशा हर वक्त सुनता रहता हूँ किस तरीके से जो लेक का वाटर है वो स्ट्राइक करता है, अपने शोर पे आता है, आराम से आता है, फिर वापस जाता है. So he keeps listening to that, he keeps hearing that all the time. While I stand on the roadways. अब वो कहां पर है? एक्चुअली में पोएट Innisfree में नहीं है, एंड दिस लाइन इज टेलिंग अस दैट कि वो कहां पे है. ही इज एक्चुअली इन अ सिटी जहां पे रोड्स हैं और जहां पे पेवमेंट ग्रेज हैं. पेवमेंट्स मतलब आपके छोटे से रास्ते जो होते हैं चलने के लिए बनाए होते हैं वहां पे. सो ही सेइंग कि जब भी मैं उन रोड्स पे खड़ा होता हूँ या फिर मैं जब वहां खड़ा हूँ पेवमेंट्स पे, रोड्स पे, मैं हमेशा बस Innisfree के बारे में सोचता हूँ और हमेशा मुझे उस लेक की याद आती है जिसकी लहरें आती है, स्ट्राइक करती हैं अपने शोर पे और फिर से वापस चली जाती हैं. सो बेसिकली हाउ ही मिसेस Innisfree so much, it's been told to us here in these lines. I hear it in deep heart's core. So अपने हार्ट के विद इन, एज इन बहुत ज्यादा डीपली इन हिज हार्ट, ही फील्स फॉर Innisfree. इससे पता चलता है कि किस तरीके से ही फील्स सो अटैच टू दैट प्लेस. फर्स्ट थिंग. सेकेंड ऑफ ऑल, हाउ ही रियली वांट्स टू गो टू अ प्लेस विच इज नॉट लाइक द सिटी ही इज लिविंग इन. ये जो थर्ड लाइन है ये आपको यही बता रही है कि किस तरीके से व्हेन ही इज इन अ सिटी जहां पे कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, पीपल हैं, सब कुछ है, लेकिन ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ इट. उनको कहाँ जाना है? नेचर के पास. जो पीस उन्हें फील करना है वो उन्हें पीस मिलेगा बस Innisfree में, जो कि नेचर के पास है, जहां पे वो अपने खुद के खाने का इंतजाम कर सकते हैं, जहां पे उन्हें बीज दिखेंगी, बर्ड्स दिखेंगे, क्रिकेट सिंग करेंगे और उन्हें ब्यूटीफुल स्काई दिखेगा फुल ऑफ स्टार्स. सो दिस वाज द पोएट्री ऑल अबाउट. आई होप आपको यहां तक समझ आया. अब हम करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस. एलिट्रेशन यूज हुआ है. एलिट्रेशन तब यूज होता है जब भी
जो पास में वर्ड्स रखे होते हैं या फिर एडजेसेंट जो वर्ड्स होते हैं एक दूसरे के बराबर में, उनमें जो साउंड आती है इनिशियल वर्ड की, अल्फाबेट की, वो सेम होती है. फॉर एग्जाम्पल हाइव फॉर द हनी बी, यहाँ पे ह की आवाज आ रही है, सो दिस बिकम्स एलिट्रेशन हियर, फिगर ऑफ स्पीच. और राइम स्कीम भी देख लेते हैं. राइम्स की इनिस्फ्री हनी बी, ये राइम हो रहा है, सो ए मेड ग्लेड, so this becomes your BB and this is the same rhyme scheme जो पूरी की पूरी पोइट्री में यूज हुई है. Also मैंने आपको बताया था अभी कि I will rise and go now, ये लाइन फर्स्ट स्टैंजा एंड थर्ड स्टैंजा दोनों में है, so it becomes your repetition here. Now in the second line, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings, यहाँ पे personification यूज हुआ है क्योंकि वेल्स मैंने आपको बताया इज अ पीस ऑफ क्लॉथ जो हम यूज करते हैं अपना फेस को हाइड करने के लिए, जिसको हम पर्दा बोलते हैं. अब मॉर्निंग के वेल्स को अगर हम बोल रहे हैं कि, और पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एट्रीब्यूट्स देते हैं किसी भी लिविंग थिंग के, तो वो बन जाता है वहां पे आपका पर्सोनिफिकेशन. मॉर्निंग के तो व्हील नहीं होता ना, मॉर्निंग तो कोई पर्दा नहीं डालता, लेकिन यहाँ पे बोले व्हील्स ऑफ मॉर्निंग की जो मॉर्निंग का पर्दा है, सो यहाँ पे हमारा यूज हो गया पर्सोनिफिकेशन. और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अभी फर्स्ट स्टैंजा में भी ये लाइन यूज हुई है और यहाँ पे भी यूज हुई है, सो दिस बिकम्स योर रेपिटेशन. एंड हियर एलिट्रेशन, जैसे मैंने बताया एडजेसेंट वर्ड्स या फिर पास में जो रखे वर्ड्स हैं उनकी आवाज सेम आए शुरू में, सो दैट बिकम्स योर एलिट्रेशन हियर. लैपिंग विद लो ल, सो दिस बिकम्स योर एलिट्रेशन हियर. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. आई होप आपको figures of speech plus the poetry पूरी की पूरी समझ आई हो. If you did like the video, can you like it? Share it with your friends. Subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Thank you for watching. Much love.